के साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में मौका मिलने वाला है। बताया गया कि 31 अक्टूबर को रियासती काबीना में वजीर के तौर पर इन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि इस हवाले से अभी हुकूमत ने कोई तौसीक और तरदीद नहीं की है। ये फैसला उस वक्त अचानक सामने आया जब जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम ज़ोरों पर है और जुबली हिल्स हल्के में अक़लियती वोटरों की बड़ी तादाद मौजूद है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत इंतखाबी नुक़्ते नज़र से कांग्रेस के लिए एक हिकमत अमली है जो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में अहम किरदार अदा कर सकती है। ज़राए के मुताबिक अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद किया गया और बताया गया कि उन्हें काबीना में शामिल करने का मकसद अक़लियती वोट बैंक को मजबूत करना है। हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम के नाम भी तजवीज़ किए हैं। पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी और जुबली हिल्स की तरक्की कांग्रेस के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी से सवाल पूछा कि वो 12 साल के अरसे में रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से कितना फ़ंड लाए हैं, इसकी वजाहत करें। कांग्रेस इस पर मुबाहिस के लिए तैयार है। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी में खुफिया मफाहमत होने का भी इल्ज़ाम लगाया। ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల పట్ల అలక్ష్యం చేసింది కాబట్టే ఇయాల ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిపించే విధానంగా ముందుకు పోతా ఉన్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారు నేరుగా అడుగుతా ఉన్నాం, రండి బహిరంగ చర్చకు. మీరు 10 సంవత్సరాలు ప్లస్ 12 ఏళ్ల కేంద్రం నుంచి ఏం తెచ్చిర్రో, 10 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేసిరో, 2 ఏళ్లలో మేమేం చేసిరో యూసుఫ్ కూడా చౌరస్తా మీద చర్చకు సిద్ధం. ఊరికే మాటలు కాదు, ఆధారాలతో రండి, మేము కూడా సూచనలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని మనం చేస్తా ఉన్నాం. కుమ్ముక్కు రాజకీయాల ద్వారా నేరుగా ఇండివిజువల్గా సింగిల్గా ఎదుర్కోలేక రెండు పార్టీలు ఆ నియోజకవర్గంలో కుమ్ముక్కు రాజకీయంతో చేసి గత ఒప్పందాల్లో భాగంగా ఆయనకు పార్లమెంటుకు ఈజీగా గెలవడం కొరకని ఆయన ఛాయిస్ క్యాండిడేట్లను పెట్టుకోవాలి. ఒకసారి శ్రీనివాస యాదవ్ కొడుకు మనోరు పద్మారావు గారిని ఏదో ఊరికినట్లా అభ్యర్థిని పెట్టినమా అంటే పెట్టిన తప్ప కిషన్ రెడ్డి గారికి టీఆర్ఎస్ మౌత్ పీసును లోపల అమర్చి టీఆర్ఎస్ విధానాలను ఆయనే కోఆర్డినేట్ చేసే బాధ్యత పేపినటువంటి పరిస్థితులలో ప్రజలు ఆలోచన చేస్తారు. పాపం బీజేపీ నాయకత్వం చూస్తుంటే జాలి కలుగుతుంది. ఆ నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందే లీడర్స్ లని నేను కాదు మాట, నేరుగా వాళ్ళ శాసనసభ్యుడు రాజా సింగ్ గారే చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇవన్నిటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి తాత్కాలిక ఇప్పుడు ఏ ఎలక్షన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉందో ఆ పరిస్థితులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు, అభివృద్ధి ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నారు. నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అక్కడికి వచ్చి సినీ కార్మికులకు సంబంధించి అనేక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. వారికి మరి సినీ ఇండస్ట్రీ తరఫున నేను హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना भवन में बीआरएस एमएलए गंगुला कमलाकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स से झूठे वादे किए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि वह अज खुद कार्रवाई करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब भी बीआरएस के साथ हैं। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. నేను మళ్ళీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కు మేము రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నిన్న 10 కోట్ల రూపాయల వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇస్తామని చెప్పేసి వెంటనే డిపాజిట్ చేస్తా అన్నాడు. హామీ ఇవ్వడమే ఒకటి ఎలక్షన్ వైలెన్స్. ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు 10 కోట్ల రూపాయలు నేను చెక్కే పంపించేస్తా అంటే మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ చూస్తూ ఎలా ఊరుకుంటుంది? కామన్ మ్యాన్ ఏమైనా చేస్తే గిట్ట కేసు పెడతారు. ఎలక్షన్ కోడ్ అందరికీ వర్తిస్తాయి కాబట్టి మీరు సుమోటోగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఎన్నికల ఉల్లంఘన కింద కేసు పెట్టాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రెండో వయలేషన్, టికెట్లు పెంచుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్లు. పెంచిన టికెట్కి వెళ్ళి 20% కార్మిక వెల్ఫేర్ ఇస్తా అని చెప్పిండు. ఇమ్మీడియట్గా ఆదేశాలు ఇస్తాను కూడా చెప్పడం జరిగింది.
ఇది రెండో ఎన్నికల వయలేషన్. మూడోది, మీ పిల్లలందరికీ ఇప్పుడే ల్యాండ్ చూసుకోండి, 4 ఎకరాల భూమిని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నా అన్నారు. ఎన్నికల కోడ్లో అసలు ఆదేశాలు ఇవ్వకూడదు, దాన్ని ఇమ్మీడియట్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. ఇదొక్క మూడో ఎన్నికల వాయిలెన్స్. इंतजामी सतह पर जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव की तैयारियां उरूज पर हैं। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में ईवीएम के रेंडमाइजेशन का अमल अंजाम दिया गया है। इस बार दूसरे मरहले के तहत था ये प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन के रहनुमाना खतूत के मुताबिक जनरल मुबस्सिर रंजीत कुमार, पुलिस ऑब्जर्वर ओम प्रकाश त्रिपाठी और मुबस्सिर संजीव कुमार लाल की निगरानी में अंजाम दिया गया। बताया गया कि सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में ये अमल शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। इस रेंडमाइजेशन के ज़रिए ईवीएम्स को गैर जानबदार तरीके से पोलिंग स्टेशनों को अलॉट किया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर आरवी कर्नन और दीगर ओहदेदार शरीक रहे। बीआरएस के कायद हरीश राव के वालिद श्री सत्यनारायण के इंतकाल पर सियासी समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, सीनियर कांग्रेस लीडर मधु याचकी गौड़ के अलावा कई सरकर्दा रहनुमाओं ने हरीश राव से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। उन्होंने अनजानी लीडर के इंतकाल की वजह से गमगीन अहल खाना से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वरंगल, हनमकुंडा, जंगा और सिद्दीपेट अजला में मुंथा तूफ़ान के ज़ेर असर भारी बारिश हुई है और इस बारिश को तारीख़ी रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। तीनों इलाकों ने बारिशों ने तबाही मचा दी है। यहाँ सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और कई इलाकों में ख़तरनाक सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वरंगल ज़िले के प्रोतगेरी इलाके में 340 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कई दीगर मकामात पर 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मुसलसल बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े हैं और रात हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और मुकम्मल एहतियात बरतें। दूसरी जानिब किला वरंगल के नशेबी इलाकों में शदीद बारिश के बाद तहसीलदार इकबाल ने खुद दौरा किया, मुतासरा आवाम से मुलाकात की, उनके हालात से वक़्फ़ियत हासिल की। उन्होंने आवाम को हिदायत दी कि सिर्फ हंगामी हालात में ही घरों से बाहर निकलें। साइक्लोन के असर से तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महबूबाबाद ज़िले के डोरंगल रेलवे स्टेशन पर शदीद बारिश के बाद पटरियों पर पानी जमा हो गया। सैलाबी पानी रेलवे यार्ड तक दाखिल होने से रेल की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। गोलकुंडा एक्सप्रेस को डोरंगल स्टेशन पर रोक दिया गया और ऐसी सूरत हाल के चलते कोनार्क एक्सप्रेस महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी गई। साउथ सेंट्रल रेलवे इंतज़ामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया या तो मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। महकमा रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि ट्रैक्स पर से पानी निकलने तक ट्रेनों की आमदरफ्त महदूद रहेगी। उधर खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा अजला में भी तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के बाद सड़क व रेल ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हुई। बताया गया कि हुकाम हाई अलर्ट पर हैं और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमदादी इक़दामात जारी हैं। नलगुंडा ज़िले में मुंथा तूफ़ान के असर से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। देवरकुंडा के कोमापल्ली ट्राइबल बॉयज़ गुरुकुल स्कूल में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए यहाँ फंसे हुए 530 तलबा और अमले के 26 अरकान को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ज़िला एसपी ने आवाम से अपील की है कि वो मुसलसल बारिशों के दौरान चौकस रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। तेलंगाना के ज़िला जंगांव में मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। ज़िले के मरकज़ी इलाके हैदराबाद रोड पर बारिश का पानी जमा हो जाने से स्कूल के तलबा और वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
स्कूलों से छुट्टी के बाद बच्चे जब घरों को जा रहे थे तो सड़कों पर जमा पानी में फंस गए। वालिदैन को मजबूर पानी में उतरकर अपने बच्चों को महफूज मकाम तक ले जाना पड़ा। मकामी लोग फौरी तौर पर पानी की निकासी के इक़दाम करने का इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं। यादाद्री ज़िले में मूसा नदी ज़ोरों से बह रही है। संगम भीमालिंगम कुतवा के करीब रोड लेवल ब्रिज पर नदी का पानी उमड़ पड़ा, जिसके बायस बोलेपल्ली से संगम और चोटुप्पल के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर हो गई। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तहत मकाम हादसा पर बंदोबस्त किया है और आवाम से अपील की है कि नदी के करीब जाने से गुरेज करें। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।